ہیں۔ سب سے پہلے تو خداوند کے میٹھے بابرکت پیارے اور بہت ہی سندر نام میں آپ سب کو سلام اور سب کی سلامتی بھی ہو۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارا خدا ہر پل کا خدا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ ہر پل کا خدا ہے، وہ ہر منٹ کا خدا ہے، وہ ہر سیکنڈ کا خدا ہے۔ تو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا بلکہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ تو میں خداوند کا نہایت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خدا نے آج یہ پیارا موقع دیا کہ میں اس خداوند کے کلام کی خدمت سر انجام دے سکوں۔ تو میں خداوند کے پیارے بندہ جو خدمت ہمارے خادم ہے پاسٹر نسیم اختر گل صاحب ہے، سر خدا ان کو برکت دے، خدا ان کے ساتھ ہو۔ تو پاسٹر ششیل صاحب آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں، خدا آپ کو بھی برکت دے، خدا آپ کے بھی ساتھ ہو۔ یاد رکھیے میرے عزیزو، خدا نے ہمیں ایک ہی بات سکھائی ہے اور خدا کے بندے خدا کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ اگر میں محبت نہ رکھوں، فرشتوں کی زبان میں بھی بولوں تو محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور چھنچھناتی چھاچ ہوں۔ لیکن ہمیں محبت رکھنی ہے تاکہ ہم ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں اور خدا کی شکر گزاری کریں، کیونکہ یاد رکھیے خداوند کے پیارے لوگوں، سب چھوٹی سی ہے بک وغیرہ اس کے رکھ دوں میں ذرا یوڈے نہ پیج کبھی ہاں دے خدا برکت اصلی ٹھیک ہے۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ سب کو برکت دے، کیونکہ یاد رکھیے میرے عزیزو، خداوند کے پیارے خادم الدین نے فرمایا کہ جب کلام کھلتا ہے تو شیطان کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ جب کیا کھلتا ہے جی؟ کلام کھلتا ہے تو شیطان کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ جب کلام کھلتا ہے تو شیطان کو آگ لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب کلام کھلتا ہے تو میرے عزیزو شیطان جو ہے وہ تھر تھرانے لگتا ہے، اور جب کلام کھلتا ہے تو پھر وہ ہماری زندگیوں سے بھاگ جاتا ہے۔ اور آج ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا اپنی قدرت کو ایسے ہی ظاہر کرے گا، کیونکہ یاد رکھیے دن بہت برے ہیں، لیکن خدا کے بندہ نے فرمایا کہ زندگی میں طوفانوں کا آنا بھی ضروری ہے۔ زندگی میں طوفانوں کا آنا بھی ضروری ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ کون آپ کے ساتھ ہے اور کون آپ کا ہاتھ چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے۔ خدا آپ کو برکت دے، کیونکہ یاد رکھیے ہمارا خدا ہر پل ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ ذرا دیکھ لیجئے متی میں ساتھ نکال لیجئے، مقدس مستی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 8واں باب، اور ہم یہ 24ویں آیت سے آج کلام جو ہے وہ سنیں گے۔ کلام مقدس میں سے ہماری نصیحت اور رہنمائی کے لیے پریز ہاللیلویا۔ لکھا ہے 8واں باب 24ویں آیت، جب وہ کشتی پر چڑھا تو اس کے شاگرد اس کے ساتھ ہو لیے، اور دیکھو جھیل میں ایسا بڑا طوفان آیا کہ کشتی لہروں میں چھپ گئی، مگر وہ سوتا تھا۔ پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت خداوند کا شکر ہو۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ یہ خدا کا خادم یعنی متی جو کہ وصول لینے والوں کا سردار اس کو گنا جاتا تھا، لیکن اس کے موت جیت کی بڑی خواہش تھی کہ یہ خدا کا خادم بنے۔ یہ خدا کا کیا بنے جی؟ خادم بنے۔ لیکن اس نے جو پیشہ اپنایا تو اس کے موت جیت بڑے بسار تھے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جب خدا کی نظر کسی بھی شخص پر پڑتی ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، تو خدا اس کو چن لیتا ہے۔ اسی لیے بائبل میں لکھا ہے کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے خداوند کے کلام سے کہ طوفان جب ہماری زندگی
जिंदगी में आता है तो बड़े बड़े जो है वो लरस जाते हैं सर जी, वो अपनी चट्टान से जो है वो थिरक जाते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि याद होगी वो आपको बात कि बाइबल मुकद्दस में हमारे मसीह ने हमें बड़ा प्यारा समझाया कि देखो एक शख्स ने चट्टान पर घर बनाया। क्या किया जी? एक शख्स ने चट्टान पर घर बनाया और जब उस घर को उस जगह पर मींह बरसा, आंधी आई, तूफान आया, काफी घर को टकरे लगी, लेकिन वो घर महफूज रहा। लेकिन जिसने अपना घर रेत पर बनाया, तूफान आया, मींह आया, बरसा, उसके बाद टकरे लगी, तो वो घर क्या हो गया? बर्बाद हो गया। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यीशु ने अपने शागिर्दों को कहा है कि हम क्या करते हैं? उस पार चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है उस्ताद। तो उन्होंने कहा कि कश्ती पर जब वो चढ़े तो चढ़े जब, तो हमें पता चलता है कि लिखा है कि देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छिप गई, मगर वो सोता था। लेकिन इससे पहले अगर हम गौर करें तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो झील जिसका यहाँ पर जिक्र किया गया है, ये गलील की झील है। और हिस्ट्री बयान करती है कि ये झील जो है ये आप पहाड़ों से घिरी हुई है सर जी। तो जो चीज हम देखते हैं कि अगर आप मरी चले जाएं तो आप ऊंचे पहाड़ पर सर जाते हैं तो उधर पहाड़ हो तो उधर हवा भी बड़ी ठंडी आती है, बड़ी ज्यादा अच्छी लगती है। तो उस झील में भी ऐसा ही था कि जिस दिन जीसस ने अपने शागिर्दों से कहा कि हम पार चलते हैं, तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा जी ठीक है उस्ताद हम चलते हैं। तो जब उस्ताद का हुक्म माना, चलने के लिए तैयार हुए, तो उस दिन मौसम बड़ा अच्छा था सुशील भाई, मौसम बहुत जबरदस्त, कोई मसला नहीं है, कोई मसाइल नहीं है, सूरज भी ठीक निकला हुआ है, कोई किसी किस्म का इश्यू नहीं है। लेकिन जब मेरे शीशो वो कश्ती में सवार हुए ना जाने के लिए कि हम चलते हैं गलील आज ये जो है वो झील से पार होकर गदरीनियों के इलाका में, तो जब अबलीस तक ये खबर पहुंची तो उसने बड़ी कोशिश की कि मैं इनको रास्ते में ही रोक दूं। क्या करूं जी? इनको रास्ते में ही रोक दूं। तो बड़ा पता चलता है कि घर में सारे रेडी होते हैं इबादत पे आने के लिए कि हम इबादत में जा रहे हैं, लेकिन इब्लीस कोई ना कोई ऐसा मंसूबा, ऐसा प्लान उनके अंदर डाल देता है कि वो सारे के सारे फिर बेचारे इबादत पर नहीं पहुंच सकते। लेकिन याद रखिए मसीह ने हमें सिखाया है कि तुम जाओ, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी कुदरत पर काली बात। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि जब झील से में से कश्ती पर सवार होकर वो जा रहे थे तो झील में क्या हुआ कि जीसस की आंख लग गई, वो सो गए। लेकिन इब्लीस ने झील में इतना जबरदस्त तूफान जो था वो लेकर आया कि शागिर्दों को ये मालूम था कि ये झील जिसमें हम मछलियां पकड़ते थे, कोई नहीं, इस तूफान का हम क्या कर लेंगे? सामना कर लेंगे। क्या करेंगे? जिस तूफान का सामना कर लेंगे। लेकिन तूफान इतना जबरदस्त, तूफान इतना ज्यादा, आंधी भी, मींह भी बरसा, बड़ा जबरदस्त तूफान, कश्ती के साथ जो है वो लहरें टकरा रही है और कश्ती डगमगा रही है, इतनी ज्यादा डगमगा रही है कि शागिर्द परेशान है कि हमने ऐसा तूफान अपनी लाइफ में कभी देखा नहीं है। बल्कि जो आसपास में छेड़े थे उन्होंने भी नोट किया कि ऐसा तूफान हम अपनी जिंदगी में कभी नहीं देख पाए। आज देखा है तो वो ये सोच रहे थे कि शायद आज हम जो है अपनी जिंदगी से हाथ भी धो सकते हैं, हम मर भी सकते हैं, क्योंकि तूफान इतना ज्यादा है,
कश्तियां जो है वो डोल रही है, पानी कश्तियों में आ रहा है, लेकिन बताना चाहता हूं कि शागिर्दों ने अपनी बड़ी ताकत लगाई, बड़ा जोर लगाया, सब अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। कोई पानी निकाल रहा है, कोई चप्पू चला रहा है, कोई मेरे चीजों उसको संभाल रहा है कि हम किनारे पर चले जाए, लेकिन उस्ताद को कोई नहीं उठा रहा। उस्ताद सोया हुआ है, क्योंकि ये उस्ताद को उठाएंगे तो उस्ताद गुस्सा न कर दे, बल्कि हम अपनी ताकत से इसका मुकाबला करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि उनकी ताकत जो है वो जवाब दे जाती है। ताकत जब जवाब दे जाती है तो फिर वो सोचते कि अब हम क्या करें। तो आज मैं यहाँ पर इनकरेज करना चाहता हूँ कि अगर आपकी लाइफ में ऐसे तूफान उठ रहे हैं, चाहे बीमारी का तूफान है, परेशानी का तूफान है, लड़ाई झगड़े का तूफान है, घर में ऐसी प्रॉब्लम्स का तूफान है, तो खुदा आज आपसे कलाम करता है, मुझे भी कहता है कि तू इन चीजों से ना डरना, क्योंकि तू भूल गया इस बात को कि चाहे तेरा गुजर मौत के साए की वादी में से क्यों ना हो, तू किसी बला से मत डरना, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तो यहाँ पर भी मालिक साथ है, लेकिन उनको उठाया नहीं जा रहा। क्या था? भरोसा था अपनी ताकत पे कि हम इसका मुकाबला कर लेंगे। तो हम भी बात का जब ज्यादा प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं तो फिर हमारी कोशिश होती है कि हम मसीह के पास आए। इससे पहले कि प्रॉब्लम ज्यादा बढ़े तो हम मसीह के पास नहीं आते, हम अपने ऊपर तकिया करते हैं, अपने ऊपर भरोसा करते हैं, अपने बासु पर भरोसा करते हैं कि हम जो है इसका मुकाबला कर लेंगे। लेकिन तू नहीं जानता कि तू कमजोर है, तू नहीं जानता तू क्या है, कमजोर है। तो इधर भी यही है कि शागिर्द अब थक गए हैं, हार गए हैं, उन्होंने अपनी फुल जान लड़ा ली है, लेकिन तूफान का मुकाबला नहीं कर पा रहे। तो इसी तरह जब उन्होंने मेरे जीजो अपने पास आकर जो था वो जीसस को जगाया और जीसस से कहा, आए खुदावन हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं, हम क्या हो रहे हैं, हलाक हुए जाते हैं। और मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ सुनने वालों को कि जब खुदा हमें मौका देता है कि मेरे घर में आ, तो मैं तेरी सारी परेशानी को दूर कर दूंगा, लेकिन हम उस वक्त क्या करते हैं कि हम इस बात को इग्नोर करते हैं। लेकिन कहते हैं बुजुर्ग कि जब सर से पानी गुजर जाता है ना, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम जो है वो होती है। जब चिड़िया चुग जाती है दाना, तो फिर बाद में क्या पछताना, क्योंकि जब ये हम अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं, अपने आप पर भरोसा करते हैं, तो याद रखिए हमेशा हम जो है वो मार खाते हैं। क्योंकि हम अगर खुदा को अपने सामने नहीं रखते तो फिर खुदा भी हमें अपने सामने से दूर कर देता है। अगर आप खुदा को अपनी जिंदगी में सामने रखते हुए कोई प्लान नहीं करते तो फिर वो आपका प्लान जो है वो फेल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भी ऐसी है कि जब वो थक गए तो उन्होंने यीशु को झुकाया और कहा कि आए खुदावंद हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। तो उसने जब देखा कि तूफान बड़ा सादा है, बड़ी सादा आंधी है, बारिश है, कश्ती में भी पानी है और कश्ती के साथ अभी भी लहरें जो है वो टकरा रही है, तो जब उन्होंने देखा तो उठकर उन्होंने कहा कि ए कम एतकादो, ए कम एतकादो लिखा है, तय कम एतकादो डरते क्यों हो, ऐ कम एतकादो डरते क्यों हो। क्या तुम्हें अभी भी मेरा यकीन नहीं है? अभी अभी मैं एक मोजज़ा तेरे सामने करके आया हूँ, तो अभी भी तुम्हें कोई यकीन नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन आप लोगों ने कहा कि हम अपनी ताकत से ही सब कुछ कर लेंगे, लेकिन याद रखना ये ना ताकत से ना शोर से, मेरी रूह से पहाड़ क्या है जिम्मेदार हो जाएगा। हालेलुया। तो आज अगर आप अपनी जिंदगी
से मायूस हो चुके हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में खुशियां ढूंढना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में ये तूफान जो उठते हैं ये कैसे थम सकते हैं, तो मैं आपको बताने लगा हूं कि खुदा आपसे भी ये कहता है कि ए कम एतकादो, डरते क्यों हो। तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा, और मेरे चीजों लिखा है कि बड़ा अमन हो गया, और लोग ताजुब करके कहने लगे ये किस तरह का आदमी है कि जिसका हुक्म हवा और पानी भी मानते हैं। और बताना चाहता हूं कि एक ही बादशाह है, वो यीशु बादशाह है, जिसके बोलने से कहने से तूफान जो है वो थम जाता है। अगर आज आप बीमारी के तूफान से लड़ते लड़ते तंग आ चुके हैं, आप कह रहे हैं कि मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूं, अगर आप अपने घरेलू मामलात से तंग आ चुके हैं, तो आज खुदा जिसने अपना हाथ बढ़ाकर हवा और पानी को डांटा तो बड़ा साकन हो गया, तो आप भी खुदा की हजूरी में आइए, उससे कहिए कि खुदा मैंने अपनी ताकत बड़ी आजमाई तेरे शागिर्दों की तरह, लेकिन मैं ठीक नहीं हो पाया। तब तेरी मिन्नत करता हूं कि तू अपना हाथ बढ़ा और मुझे इस बीमारी से शिफा दे, क्योंकि याद रखिए शिफा का मंबा हमारा खुदावन यीशु मसीह नासरी है, उसके अलावा कोई भी शिफा दे नहीं सकता। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, बचाए कि आप गैर मबूदों का सहारा लें, बजाय कि आप गैर लोगों के पास जाएं, बजाय कि आप उनके पास जाएं जिनसे खुदा को नफरत है। तो मैं आपसे यही कहूंगा, अगर जिंदगी में तूफान उठ रहे हैं तो प्लीज आप खुदावन की तरफ आइए। खुदा कह रहा है मैं तेरी जिंदगी में तमाम उठने वाले तूफानों को थमा दूंगा, बट तू मुझ पर ट्रस्ट करके तो देख। लेकिन जब हम ईमान नहीं रखते तो फिर बड़ी ज्यादा जो है वो मुश्किल पेश आती है। कैसे आती है कि मैं बताना चाहता हूं कि आप जब लड़ते लड़ते बीमारी से थक जाते हैं ना, तो फिर आपका ईमान कमजोर हो जाता है, फिर इब्लीस आप पर और अटैक करता है, और जब अटैक करता है तो फिर आप यही कहते हैं कि काश हम अपने आप को खत्म ही कर ले तो अच्छा है। लेकिन अगर आज आप मायूस हो चुके हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, परेशान हो चुके हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपनी जमा पूंजी जो बीमारी पर लगा के अब परेशान है कि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन खुदा आपसे कह रहा है कि मैं अपना हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हूं। मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू मेरी तरफ आ, तो मैं तेरी जिंदगी के तमाम तूफानों को थमा दूंगा, क्योंकि मुझ में थमाने की कुदरत है। हालेलुया।